Hello children, I hope you all are doing good. Let's start chapter number 12, representing 3D in 2D. In the previous class, we have learnt about two-dimensional and three-dimensional shapes. We know that 2D shapes have length as well as breadth, while 3D shapes have length, breadth and height or depth as their dimensions and are called solids. Ball, book, box, ice cream cone, road roller, etc. are some examples of solids in our surroundings. Let's learn more about solids. देखिए previous class में आपने 2D and 3D shapes के बारे में पढ़ा था. 2D shapes जिनकी length and breadth होती है and 3D shapes जिनकी length, breadth, height या फिर depth होती है और उन्हें हम कहते हैं solids. तो चलिए कुछ solids के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले देखिए आपको दो figures given है. तो जो flat surface होता है solid का, that is called face. It can be plane surface or a curved surface. The line segment where two faces of a solid meet together is called the edge of the solid. And the point where two or more edges of a solid meet is called the vertex of the solid. देखिए edge क्या होता है? जहाँ पे line segment आपके दो faces solid के meet करते हैं और जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा edges meet करते हैं उसे कहते हैं vertex. Various type of solids. Sphere. A sphere is a circular solid. It has one curved face. It has no vertex and no edge. Prism. A prism is a solid formed by joining two congruent plane shapes together with straight lines. The two congruent shapes called the bases are parallel. Given below are different types of prism which are named according to their cross sections. जैसे कि आपके पास है पहला triangular prism. A prism which has a triangular cross section is called a triangular prism. It has total 5 faces, 3 rectangular bases and 2 rectangular lateral faces. It has 6 vertices and 9 edges. Next is rectangular prism. A prism which has a rectangular cross section is called a rectangular prism or cuboid. It has total 6 rectangular faces. It has 8 vertices and 12 edges. ये shape तो आपने देखी है, इसे हम बोलते हैं cuboid. Next is square prism. A prism which has a square cross section is called a square prism or cube or hexahedron. It has total 6 faces and each face is a square. It has 8 vertices and 12 edges. आपका जो cube होता है इसे हम क्या कहते हैं? Square prism या फिर hexahedron. Next is pentagonal prism. A prism which has a pentagonal cross section is called a pentagonal prism. It has total 7 faces, 2 pentagonal bases and 5 rectangular lateral faces. It has 10 vertices and 15 edges. Next is hexagonal prism. A prism which has a hexagonal cross section is called a hexagonal prism. It has total 8 faces, 2 hexagonal bases and 6 rectangular lateral faces. It has 12 vertices and 18 edges. Next is pyramid. A pyramid is a solid whose base is a plain rectilinear figure and whose side faces are triangular having a common vertex. Given below are different types of pyramids which are named according to the shape of their bases. सबसे पहले आपके पास triangular pyramid. A pyramid which has a triangular base is called a triangular pyramid. It has total 4 faces. Each face is an equilateral triangle. It has 4 vertices and 6 edges. It is also known as tetrahedron. देखिए इसका आपका जो बेस है वो ट्रायंगुलर होता है. इसमें 4 फेसेस हैं. इसमें हर फेस जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसे टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर पिरामिड. अ पिरामिड व्हिच हैज अ रेक्टेंगुलर बेस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर पिरामिड. इट हैज टोटल 5 फेसेस, 1 रेक्टेंगुलर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस. इट हैज 5 वर्टिसेस एंड 8 एजेस. नेक्स्ट इज स्क्वायर पिरामिड. अब स्क्वायर पिरामिड है तो बेस ऑब्वियसली इसका स्क्वायर होगा. अ पिरामिड व्हिच हैज अ स्क्वायर बेस इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिड. इट हैज टोटल 5 फेसेस, 1 स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस. इट हैज 5 वर्टिसेस एंड 8 एजेस. Next is pentagonal pyramid. A pyramid which has a pentagonal base is called a pentagonal pyramid. It has total 6 faces, 1 pentagonal base and 5 triangular lateral faces. It has 6 vertices and 10 edges. Next is hexagonal pyramid. A pyramid which has a hexagonal base is called a hexagonal pyramid. It has total 7 faces, 1 hexagonal base and 6 triangular lateral faces. It has 7 vertices and 12 edges. Polyhedron. A figure made up of plane faces is called polyhedron. Given below are different types of polyhedra. Polyhedra actually plural है polyhedron का, which are named according to the number of their faces. सबसे पहले है आपके पास octahedron. Octa है तो मतलब इसमें 8 faces होंगे. It has total 8 faces. Each face is an equilateral triangle. It has 6 vertices and 12 edges. Next is dodecahedron. It has total
12 faces and each face is a regular pentagon. It has 20 vertices and 30 edges. Next is, what is the next shape? Is icosahedron. It has total 20 faces and each face is an equilateral triangle. It has 12 vertices and 30 edges. Remember that polyhedra with congruent faces are called regular polyhedra, triangular pyramid, square prism, octahedron, dodecahedron, icosahedron are the examples of regular polyhedra. Euler's formula. Euler, a great Swiss mathematician, discovered a relation between the numbers of edges, number of faces and the number of vertices for any 3D shape. It states that f plus v minus e is equals to 2. एक मैथमेटिशियन थे स्विस के, स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जहाँ पे f का मतलब है नंबर ऑफ फेसेस, v का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e का मतलब है नंबर ऑफ एजेस. सो लेट्स वेरीफाई द अबव फॉर्मूला फॉर डिफरेंट सॉलिड्स. इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है. देखिए आपके पास इस टेबल में पॉलीहेड्रा के नाम दिए गए हैं, उनके कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, एवरीथिंग इज गिवन. वी हैव टू जस्ट वेरीफाई एलर्स फार्मूला. तो आपके पास क्या है फार्मूला? f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2. सबसे पहले अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो फेसेस हैं 5, वर्टिसेस हैं आपके पास 6, एजेस हैं 9. 11 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2. तो 2 इज इक्वल्स टू 2. वेरीफाई हो गया, राइट. अब हम रेंडमली कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ट्रायंगुलर पिरामिड. ओके, तो f है उसके पास 4 प्लस वर्टिसेस भी हैं 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2. 4 प्लस 4 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2. ये भी आपका वेरीफाई होगा. ठीक है, तो देखिए आप जब सारे ही केसेस में चेक करेंगे तो आपका जो एलर्स फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो जाएगा. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. आपको डिफाइन करना है, उनके 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, इसे आप खुद करेंगे. नेक्स्ट इज राइट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स. सॉलिड्स के नेम दिए हैं, आपसे पूछा गया है फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस. अभी आपको जो लास्ट पेज पे टेबल दी गई थी आप वहां पे देख सकते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग एलर्स फॉर्मूला फाइंड द मिसिंग नंबर्स. अब आपको एलर्स फॉर्मूला यूज करते हुए मिसिंग नंबर्स निकालने. तो सबसे पहले फॉर्मूला आपके पास क्या है? f plus v minus e is equals to 2. Number of faces 7, vertices not given and edges 15 is equals to 2. Okay. अब आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए 15 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे 8 आएगा is equals to 2. v is equals to 2 and ये इधर आके प्लस हो जाएगा v is equals to 10. ओके, इसी तरह से आपको बाकी की जो टेबल है मिसिंग नंबर्स हैं उन्हें निकालने हैं, राइट. Next is nested solids. In our day-to-day life, we come across such solids which are the combination of 2 or more solids. These types of solids are called nested solids. बहुत सारे ऐसे आपके solids आपको मिलते हैं day-to-day life में जो combination होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा के solids के. जैसे कि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो देखिए नीचे आपका सिलेंडर है, ऊपर आपका कोन है. तो किससे बना है? कोन एंड सिलेंडर से. इसी तरह से आपकी जो फिगर है किससे बनी है? हेमिस्फेयर एंड कोन. हेमिस्फेयर यानी स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर. इसी तरह से आपके पास देखिए ये है हेमिस्फेयर, दिस वन एंड सिलेंडर, सिलेंडर, कोन, triangular prism and cuboid. Nets of solids. A net of solid is the outline of its faces joined together from which a model of the solid can be made. Observe the nets of some solids. देखिए यहाँ पे आपको कुछ नेट दिए गए हैं, जैसे कि net of a square pyramid, net of a square prism, net of rectangular pyramid, net of rectangular prism. ये सारे solids के आपको नेट दिए गए हैं. नेक्स्ट इज 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D सॉलिड्स. 3D सॉलिड्स का 2D रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? टू ड्रॉ 3D ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन वी यूज अ स्पेशल पेपर कॉल्ड आइसोमेट्रिक पेपर. एक आइसोमेट्रिक पेपर होता है, उसका हम यूज करते हैं. द डॉट्स और द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इन दिस टाइप ऑफ पेपर फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक्चुअली इसमें जो डॉट्स हैं आपके और जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. तो लेट्स ड्रॉ सम 3 डायमेंशनल शेप्स ऑन आइसोमेट्रिक पेपर. देखिए कोन बनाना है तो आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि किस तरह से क्या ड्रॉ करना है. जैसे कोन है, सिलेंडर है, पेंटागनल प्रिज्म है. तो जब आप इस आइसोमेट्रिक पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हमें आपको ड्रॉ करना है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच 2 सॉलिड्स आर यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग नेस्टेड सॉलिड्स. देखिए किसका यूज हुआ है? सिलेंडर एंड दिस इज कोन.
इसी तरह से इसमें आपका क्या है, कोन, एंड ऊपर है आपका हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यानी स्फेयर का आधा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेम द सॉलिड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय ईच नेट। इसे आप खुद से करेंगे, आपको सॉलिड बताना है कि कौन सा सॉलिड होगा जिनका ये नेट बना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ द नेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इसी तरह से आपको इन शेप्स का नेट बनाना है। नेक्स्ट इज व्यू ऑफ 3D शेप्स। Every solid has 4 different views, top view, front views, side view and back view। किसी भी solid के 4 views होते हैं, एक आप उसे ऊपर से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, साइड से देखते हैं, बैक से देखते हैं। जैसे कि आपको देखिए टेबल दिया गया है, टेबल को आप ऊपर से देखेंगे इस तरह से दिखेगा, फ्रंट व्यू सामने से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, और बैक से इस तरह से। इसी तरह से आपके पास डाइस है, आप टॉप से देखेंगे आपको ये नजर आएगा, आप साइड से देखेंगे यानी आप इसका फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट 4, और साइड से देखेंगे तो इस तरह से ये 3। इसी तरह से इन शेप्स का भी है, राइट। Next is mapping space around us. In history and geography, we have studied about maps. Here we will learn to read map and find the difference between a picture and a map. The basic difference between a picture and a map is that while drawing a picture, we try to give every basic detail to represent reality. But in a map, we have concerned about the location of a place with respect to its location with the other places. देखिए, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में आपने मैप्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी हम थोड़े से मैप्स को रीड करेंगे, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे कि पिक्चर और मैप के बीच में क्या डिफरेंस है। The other difference is that the description of a picture can vary depending on the position of the observer, whereas the map remains the same irrespective of the position of the observer. देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी पिक्चर है, अब ऑब्जर्वर उसे कहाँ से देख रहा है, किस पोजीशन से देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिप्शन पे, बट मैप में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है विच स्ट्रीट इज बिटवीन फायर स्टेशन एंड बस स्टेशन। तो ढूंढते हैं सबसे पहले फायर स्टेशन एंड बस स्टेशन को। देखिए फायर स्टेशन एंड बस स्टेशन के बीच में है आपका स्ट्रीट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रीट इज बिटवीन पुलिस स्टेशन एंड स्टेडियम 2। ओके, सो पुलिस स्टेशन एंड स्टेडियम 2 के बीच है स्ट्रीट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जियोग्राफिकल लैंडमार्क ऑफ द सिटी। अगर हम सिटी का जियोग्राफिकल लैंडमार्क देखें तो वो क्या है, रिवर। ओके, इसी तरह से देखिए आपके पास एग्जाम्पल 2 है, इसके थ्रू आप देख के आप एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका टॉप व्यू बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, जो आपको दिख रहा है इस तरह से। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस कार का टॉप व्यू बनाना है, वो तो आप खुद ही से ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे ही करना है, टॉप, साइड और फ्रंट तीनों ही व्यू आपको बनाने हैं। इसके बाद आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको एक मैप दिया गया है और आपको आंसर करना है। तो ये तो बहुत इजी है, आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ओवरव्यू। All 2-dimensional shapes have length as well as breadth, while all 3-dimensional shapes have length, breadth and height. The figures made up of plane faces are called polyhedra. Euler's formula states that for every solid with straight edges only straight edges, f plus v minus e is equals to 2. This is Euler's formula, जहाँ पे f stands for number of faces, v stands for number of vertices and e stands for number of edges. A nested solid is the combination of 2 or more solids. A map shows the location of a place with respect to its location with the other places. Children, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।